اس پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائر ارشد ملک صاحب. آپ ان کی گفتگو سنتے رہتے ہیں. ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک پریس بریفنگ تھی جس میں میں بھی شریک تھا. وہاں پہ ڈی جی صاحب نے ایک خدشے کا اظہار کیا کہ انڈیا اس وقت ایک پلان کر رہا ہے گہرے سمندر کے اندر فالس فلیگ آپریشن کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب زمینی طور پہ کچھ کیا جاتا ہے تو فوراً ایکسپوز ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ لوگ موجود ہوتے ہیں, اور جب ایئر فورس کے ذریعے بھی کوئی گڑبڑ کی جاتی ہے تو اس وقت بھی یعنی شاہدین بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن پانی کے اندر ظاہر یعنی شاہدین نہیں ہوں گے تو وہ اس کو سٹیج کر کے کسی طریقے سے بھی پاکستان کے اوپر ایک جنگ امپوز کر سکتا ہے. تو یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ اگر اس ٹائپ کا کوئی آپریشن ہوتا ہے تو پھر پاکستان کا جو ریئیکشن ہوگا وہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید بھائی, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ود یو. میرا خیال ہے میں نے کچھ عرصہ پہلے اس پہ ایک بات کی تھی. میں نے کہا تھا کہ یہ جو سرکریک میں جا کے ان کے ڈیفنس منسٹر کا بیان ہے اور اس کے بعد بھی نے وکرم پہ جا کے جو سٹیٹمنٹ دی ہے, تو میرا خدشہ یہ تھا کہ اس دفعہ یہ سمندر سے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کریں گے. اور میری رائے یہ ہے, اور یہ رائے تھی اور ابھی بھی میرا یہ خیال ہے, کہ یہ سرکریک کی طرف سے کچھ نہ کچھ زمین پہ قبضہ کریں گے اور پھر بعد میں نیگوشیشن ٹیبل پہ اور لے دے کر کے کچھ نہ کچھ کریں گے. اور اس کی وجہ آپ نے بالکل صحیح بیان کی. میرا اس وقت جو بیانیہ تھا اور جو میں ابھی بھی بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, ہندوستان دوبارہ سے ایک مس کیلکولیشن کر رہا ہے. اس کو اندازہ نہیں ہے کہ الحمدللہ پاکستان ایئر فورس نے میراجز ہم نے کم کر دیے ہیں, تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید ہماری جو قوت ہے سمندر میں آپریٹ کرنے کی وہ کم ہو گئی. لیکن اس کو یہ علم نہیں ہے کہ ہم نے جو JF-17 کی شکل میں اور J-10 کی شکل میں جو اپنی کیپیبلٹی بڑھائی ہے اس کی ڈیمونسٹریشن سندور میں نہیں کر سکے بیکاز وقت نہیں تھا اور ایسی کوئی سچویشن بھی ڈیولپ نہیں ہوئی. ساری سچویشن اوپر نارتھ میں تھی. تو میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی ہمیشہ سے انٹر آپریبلٹی میں عمل کرتے رہے ہیں. ہمارا گیم پلان, ہمارے وار پلانز بالکل مربوط ہے, اور اگر اس نے کوئی اس طرح کی کوئی سازش کی, فلیگ شپ آپریشن کیا, تو اس کا بہت کڑا جواب دیا جائے گا پاکستان نیوی کی طرف سے بھی, اور مل کے پاکستان ایئر فورس کے جو جہاز ہیں ان کے اوپر جو ہمارے پاس اس وقت میسائلز ہیں وہ ایکسوسٹ میسائل سے کہیں بہتر ہیں جو ایکسوسٹ میسائل ہم میراجز پہ آپریٹ کرتے تھے. اچھا ملک صاحب, اگر آپ واقعات کو دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہندو کیلنڈر دیکھیں تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ جو کچھ بھی انڈیا کے اندر ہو رہا ہے وہ ہندو کیلنڈر کے مطابق ہو رہا ہے, اور اس کیلنڈر کے اندر جو ان کے جس طرح ان کے دیوتا کرتے رہے ہیں یا ان کے گاڈز کرتے رہے ہیں یا بھگوان کرتے رہے ہیں اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں. اب وہ 12 جو نومبر ہے اس وقت ایک ڈیٹ آتی ہے جس کے اندر ان کا کیلنڈر یہ کہتا ہے کہ دشمن کے اوپر حملہ کرنا چاہیے. تو اگر آپ اس کو سٹڈی کریں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس طرف آگے بڑھ رہے ہیں. تو اب اگر یہ آگے آ جاتے ہیں یا پاکستان کی سرزمین کے اوپر کسی ٹکڑے پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر پاکستان کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ فوج نے کیا فیصلہ کیا؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بڑی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہندواتا سوچ جو ہے, اور خاص طور پہ جب سے یہ مودی اور RSS ڈومین آیا ہے, انہوں نے اپنے ملک کی جو اخلاقی بنیادیں تھیں ان کو تو کھوکھلا کر ہی دیا, لیکن انہوں نے پرابلی اخلاقی قدروں کے ساتھ ساتھ سفارتی قدروں کو بھی کھو دیا ہے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ اپنی پرسنل ایمبیشن اور پرسنل گین کے لیے اس کیلنڈر کو فالو کر رہا ہے. 100 سالہ جشن ان کا چل رہا ہے RSS کا, الیکشن آنے والے ہیں, اس کی کوئی پارلیمنٹ میں اتنی چل نہیں رہی, تو یہ کچھ نہ کچھ تو, اور پھر اس کو زخم بھی بہت گہرے لگے. پھر آپ نے دیکھا کہ اس نے ویسے پراکسی وار کے لیے افغانستان میں کوشش کی, جب ادھر بھرپور جواب دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا پاکستان کی سوورینٹی پہ, تو اب یہ اس قسم کی ایک سازش یا فلیگ شپ آپریشنز کا ضرور پلاننگ کر رہا ہوگا. میرے خیال میں افواج پاکستان نے تو بڑا کلیئر میسج دے دیا ہے کہ اگر آپ نے اس دفعہ چھیڑ چھاڑ کی تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس دفعہ صرف اور صرف تباہی ہوگی, بربادی ہوگی آپ کے لیے. اور ظاہر ہے کچھ نہ کچھ نقصان تو ہمیں بھی بھگتنا تو پڑے گا, لیکن اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. اب شاید ان کو وہ جائے پناہ نہ مل سکے جو پچھلی دفعہ ٹرمپ نے دے دی یا پچھلی دفعہ کو کمپرومائز کر لیا گیا. میرے خیال میں تو ایک نہایت سویئر ایکشن
इनके ऊपर आएगा और जिसकी ये शायद तवक्को नहीं कर पाए। ठीक, मलिक साहब ये फरमाइएगा कि एक खबर चल रही है, बल्कि एक इंटरव्यू दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और इस इंटरव्यू में उन्होंने जिक्र किया है कि नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान मुसलसल एटमी तजर्बात कर रहा है और किसी को पता नहीं चलने दे रहा, बल्कि उन्होंने कहा कि ज़मीन के अंदर इतनी गहराई में करते हैं कि सिर्फ छोटी सी लर्जिश होती है, जल्जला आता है और उससे ज़्यादा किसी को पता नहीं चलता। तो साथ उन्होंने कहा कि अगर वो कर रहे हैं तो हमने भी फैसला किया है कि हम भी अपने न्यूक्लियर जो टेस्ट है वो करते रहें, ताकि हमारी अपनी टेक्नोलॉजी भी टेस्ट होती रहे। अब ये पाकिस्तान, उसके बाद आज DGISPR के साथ प्रेस ब्रीफिंग थी और वहाँ पे एक साहब ने सवाल भी किया, हमारे जर्नलिस्ट दोस्त ने, कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है। तो DG साहब ने उसका ये जवाब दिया कि ये हमारी टेक्नोलॉजी है, इवॉल्विंग है, उसको उसके अंदर हम उसको इवॉल्व कर रहे हैं, तो कोई ज़ाहिर रोक नहीं सकता और इवॉल्विंग फेज में है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने तस्लीम भी कर लिया कि हम इस टाइप के जो तजर्बात है वो करते रहते हैं। तो अब अगर ये तजर्बा किया जा रहा है तो इससे क्या मैसेज इंडिया को जाना चाहिए और किस टाइप के तजर्बात पाकिस्तान कर सकता है इस वक्त? जावेद भाई, इस पे दो तीन चीजें ज़हन में रखिएगा कि आखिरी टेस्ट जब यूनाइटेड स्टेट्स ने किया था प्रॉपर न्यूक्लियर टेस्ट, वो 1992 में किया, और सोवियत यूनियन जब उस वक्त था तो उसने 1990 में किया, और चाइना ने 1996 में किया। उस वक्त से ये एक बैन सा लगा हो गया था। लेकिन अगर आप याद करें तो नेवादा नेशनल सिक्योरिटी साइट पे अमेरिका ने 2014 में एक और टेस्ट किया था। अच्छा, ये मैं DGISPR की स्टेटमेंट नहीं सुन सका। मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले तो ये ट्रंप का एक बड़बोला है जो उसके मुंह से निकल गया, और फिर उसने उसको मेंटेन करने के लिए, अगर आप उसको फॉलो करें तो उन्होंने पहले कुछ मुल्कों के नाम लिए, आखिर में पाकिस्तान का नाम भी ले दिया, वरना उनका इशारा यकीनन रशिया और नॉर्थ कोरिया की तरफ था, और इसकी बाकायदा तरदीद रशिया ने और चाइना ने तो कर दी। मेरा नॉलेज है वो ये है कि ये होते हैं सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट, ये प्रॉपर न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होते, और इनकी CTBT में कोई इस तरह की अमर मान्या नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते। ये क्यों किए जाते हैं? ये इसलिए किए जाते हैं कि जब आपके पास इक्विपमेंट होता है, जब आपके पास एक्सप्लोसिव्स होते हैं, जब आपके सिस्टम्स होते हैं, तो आप ये टेस्ट करते हैं कि उनकी क्या वो ड्यूरेबल हैं, उनकी हिफाजत कैसी है, क्या वो जैसे उर्दू में कहते हैं क्या काबिल एतमाद हैं, और एजिंग फैक्टर जो उम्र के साथ साथ कोई ऐसा मसला तो नहीं आ गया। फिर उसके हिफाजती और तकनीकी पहलुओं की भी जांच पड़ताल आप करते हैं। लेकिन टेक्निकल जुबान में ये जीरो यील्ड होते हैं, इनमें कोई ऐसा आप तजुर्बा नहीं करते जो कि जेर जमीन हो या समंदर के अंदर हो। आपने देखा ये परेशान इसलिए हुए ट्रंप साहब कि कुछ मिसाइल के टेस्ट हुए हैं नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी और रशिया की तरफ से भी, जो यकीनन बहुत बड़ा टेस्ट था। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एज फार एज सेफ्टी सिक्योरिटी इज कंसर्न और कंप्लायंस ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आर कंसर्न, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द बेस्ट, दैट हैज बीन प्रूवन, और अभी तक कोई इस पे उंगली नहीं उठी कि हमारा सिस्टम कैसा है। रही बात तैयारी की, तो ये तो आप यकीन रखें, मैंने अभी भी कहा कि हमारी अफवाज की तरफ से बड़ा क्लियर मैसेज है इंडिया को कि हमारे जो असासे हैं, जो न्यूक्लियर खास तौर पे असासे हैं, वो इस हालत में हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बहुत जल्द डिप्लॉय भी हो सकते हैं, मोबाइल तरीके से डिप्लॉय हो सकते हैं, टेक्टिकल रेंज से लेके डीप लॉन्ग रेंज तक भी डिप्लॉय हो सकते हैं, और बड़ी आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह हो सकते हैं। तो उस लिहाज से हम तैयार हैं और हम कोई इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करते। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अभी ज़ाहिर तालिबान के साथ दोबारा हमारे मुज़ाकरात 6 तारीख को स्टार्ट होंगे, 6 नवंबर को, और आज जो DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग थी उसके अंदर कुछ चीज़ों का इजहार किया। एक तो उन्होंने कहा कि TTA और TTP जो है दोनों एक दूसरे के सहूलतकार हैं और दोनों एक ही हैं और इनके में कोई खास फर्क नहीं है। दूसरा उन्होंने बताया कि तालिबान जो है वो PLA और TTP दोनों को अपने मुल्क के अंदर बसा रहे हैं। तो जाहिर है अब अगर हम कोई हमारे दुश्मनों को बसाएगा तो वो हमारे दोस्त तो नहीं हो सकते। साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें ऑपरेशन ही करना पड़ेगा और दहशतगर्द हमसे बच नहीं सकेंगे। फिर कुछ फिगर्स भी हमारे साथ उन्होंने शेयर किए कि जिसके अंदर कितने लोग शहीद हुए, कितने दहशतगर्द मारे गए। तो आपको कोई ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्तांबुल के अंदर 6 तारीख को, उसके अंदर कोई रोशनी नजर आ रही है या आपको महसूस हो रहा है कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल सकेगा?
जावेद भाई, एक बात मेरा ख्याल है हमें तस्लीम कर लेनी चाहिए कि दुनिया में जब भी मजहबी जुनूनियत आई, उन मजहबी जुनूनियों ने अपनी इस्तिलाहें निकाली, अपनी तरजीहात निकाली, और उन मजहबी जंगों को उन्होंने जमीर से जोड़ने की कोशिश नहीं की। उन ईमान जिसकी हम बात करते हैं उसको इल्म की बजाय एक नफरत में लेके चले गए। यही हाल तालिबान का है। वो इस्लाम की बात तो करते हैं लेकिन जबर की बात करते हैं। वो कभी कुरान की तालीमात की सही तरह बात नहीं करते। अब जब इस चीज को मैं, आप या कुछ लोग आके बात करते हैं तो हम पे लिबरलिज्म का एक लेबल लग जाता है, और हमें ये कहा जाता है। हालांकि देखा जाए तो अगर आप याद करें कि जो 1572 में फ्रांस में जब प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के दरमियान हुई थी, वो भी एक मजहबी वार थी, और वही पेरिस से शुरू होती है, स्पेन में जाती है, बोस्निया में जाती है, इसराइल में जाती है, म्यांमार में जाती है, रोहिंग्या में जाती है, और अब पेशावर में आके वो हम देखते हैं कि हमारे मासूम बच्चों को शहीद किया जाता है, हमारी इबादत गाहों को तबाह किया जाता है, और नापाक जो लोग हैं वो हमारा एक पाक खून बहाने की कोशिश करते हैं। तो ये वक्त आ गया है जिसमें हमें लोगों को ये बताना पड़ेगा कि अगर मजहब को आप जवाज बनाएंगे, मजहब को ताकत के लिए इस्तेमाल करेंगे, मजहब में मुनाफकत लेके आएंगे, तो फिर यहां पे बड़ी क्लियर डेफिनेशन होगी कि कोई तालिबान जो एक दूसरे के साथ हैं, जो कि इंसानियत के खिलाफ हैं, अखलाकियत के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ जंग है, जंग रहेगी। तो जो आज की जो बयान आ रहे हैं, या एक्चुअली तो बड़े अरसे से एक मोहतात रवैया था, लेकिन मेरे ख्याल में अब हमें अपने पाकिस्तानी मुहिब वतन पाकिस्तानियों को बता देना चाहिए कि वो हमारे जो पेशावर के लोग हैं, जो केपीके के गयूर अवाम हैं, जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, वो सबसे ज्यादा सफर इसीलिए कर रहे हैं कि एक गलत तालिबान के बारे में इंप्रेशन था और वो निकाब उन्होंने उतार दिया। तो मैं उनसे इत्तफाक करता हूं, और मैं ये भी कहता हूं कि ये वक्त आ गया है कि हमें अपना सफेद को सफेद, झूठ को झूठ कहना चाहिए। अब आपने बात की मुज़ाकरात की, अगर मैं सच्ची बात करूं तो मुझे कोई तवक्को नहीं, कोई खैर की तवक्को नहीं। जी ठीक हो गया। अरशद मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खौसत आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।